So good morning and welcome to all. And we are going to do our 20th chapter today. And congratulations to all of you कि आप इतनी जर्नी कंप्लीट करके आज 20वें दिन तक पहुंच गए हैं. बहुत से हैं जो बीच में आए और चले गए. और you have been consistent. It actually talks a lot about you as a human being. It talks about you being extraordinary. It talks about you that you are committed for your life. And no matter what conversations you have about yourself, मैं ऐसी अच्छी नहीं हुई हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा and all, but I really want you to know you are extraordinary. How many people get up in the morning and come and join the session? You are doing it day after day, consistently for last 22 days or 21 days you've been doing it. So congratulations and thank you so much for being committed for your own life. And people who are committed always get what they want because when they're committed, they take actions. So actions here is practice. So people who are practicing are getting results. And so अगर सिर्फ सुनने के लिए आ रहे हो तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ रहे हो. अपने और अपने सपनों के बीच में पहुंचने में बहुत देर लगा रहे हो. So be consistent, take action, and just be at it. Okay, so I was asking a question. Why are you coming in the sessions? What is it that you pulls you into this session? What is it that calls you into this session? Because सुबह सुबह मन भी नहीं करता उठने का. Like I get up early morning every day because I was very tired last 2 days because I was traveling both the days and I barely slept. I just slept for 2.5 or 3 hours and both the nights. So वो थोड़ा सा ना body was not feeling very, at ease. So I just wanted this the first day that I did not get up, at that time in our last, I think, 7 months or something. And आज पहला दिन है कि मैं देर से उठी हूँ because I wanted to respect my body. I wanted to listen to my body. And but कहीं ना कहीं वो एक हल्का सा गिल्ट भी आ रहा है. यार आज ये मिस हो गया. क्योंकि that means a lot to me. That gives me so much of power and energy in the morning. So similarly, जब आप इस सेशन में आते हो तो ऐसा क्या है जो आपको खींच के लाता है इस सेशन में कि सुबह सुबह ना उठने का मन करने के लिए भी आप बिस्तर से उठते हो and you get into act and sit in this session. So Varun had said that he is able to जैसे वो जिंदगी जी रहा है जो उसके सेट बिलीव्स हैं उससे उसको एक तरह का जो रिजल्ट मिल रहा है and he is not satisfied with that result, so he's looking for other ways and means by which he can achieve what he wants to achieve. और उसको लगता है यहाँ आने से शायद उसको कुछ रास्ता मिलता है या उसको कुछ उस रास्ते पे चलने का तरीका भी मिलता है. So that is why he said he's here. Am I right, Varun, in you know putting it together for Yes, you? yes. Okay, fine. Thank you. So who would like to share now? Why are you coming in this session? Archana was saying something when I started recording it. Yeah, Archana. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was saying that, ma'am, my belief system says that, ma'am, if I come in the session, my thought process is changing, ma'am. Mhm. And, ma'am, I I really believe that my if my process is going to change, I can achieve anything in my life. And it really brings me a lot of peace when I'm in this journey of gratitude. It gives me a lot of peace, this session, most of all. And I really feel that if I'm in gratitude, and one thing which is really important for all of us, that is not to complain. These two things are really tools for us कि हाँ कुछ भी अचीव कर सकते हो. इस दो Okay. चीज से कुछ भी अचीव कर सकते हो. That brings me into this session, and this session is training me every day. Every day I'm getting to learn कि कहाँ पे मैं thank you बोलूं और कहाँ पे complain ना करूं. It really brings me that. And every day it's like अगर माइंड में कुछ आता है कि यहाँ पे स्टक हो रहे हैं, पता नहीं सेशन में वो अपने आप आ जाता है कि हाँ इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे, इट विल बिकम, यू कैन मेंड योर टूल. इट्स लाइक दैट.
मेनी Great. टाइम्स ऐसे होता है कि दिमाग में वो कहीं ना कहीं चल रहा है, बट वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट. But the sessions, they are like a spark. They tells us, कि यहाँ पे stuck हो तो you have to do this so that you can become better. Okay. So what if I can just put it in one or two sentences, is that you're creating a new beliefs. Yeah. And Yes, you're also learning new tools which are helping you to achieve, and wherever you are stuck, you're getting a guidance. yes, ma'am. Yeah. Okay. Thank you so much, Archana. One more No worry, question. ma'am. What brings you to this session in the morning? Who would like to share before we start the chapter today? Yeah. Okay, ma'am. I do not, Who's my that? main aim, okay, sorry. You can continue, then I'm going to say. No, I want to know who's speaking. Okay, ma'am. This is Khushbu here from Kolkata. Okay, Khushbu. Yeah. So, ma'am, my main aim of joining the sessions every morning is to have a whole positive morning, basically. When I hear so many sharings from people, I realize that this is working. So why like how people take medicines in the morning? So I feel this is a small medicines to my brain, maybe. So which will only create positive thoughts the whole day, and maybe the sharings would inspire me also to maybe get up more early, to give more gratitude, to write more blessings, and inspire me. That's it. Great. So what I understood from what you said is that you want to kickstart your day with positivity. Right. Yeah. And when people are sharing and you come to know that whatever this book is teaching, it is working. Mm-hmm. Yeah. And so this is how you want to learn from it and start your day, uh, filling your mornings with gratitude, and so that you start practicing it, right? Right. Yeah. Thank you so much. ओके गाइस, आज का चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले मुझे बताएं, आप में से फुट स्टेप्स किस किसने किए कल और कैसा रहा? मैम प्रीति दिस साइड, गुड मॉर्निंग टू ऑल. या प्रीति, गुड मॉर्निंग, टेल मी. हाँ जी मैम, बहुत मजा आया. मुझे लगा हर टाइम हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि मैं एक कदम से दूसरे कदम पे आगे बढ़ती चली जा रही हूँ, बढ़ती चली जा रही हूँ, बढ़ती जा रही है, और कभी मैंने थैंक यू नहीं किया. मुझे अपने लिए एक गिल्ट फीलिंग एक बार अपने हाथ में जनरेट हुआ कि मेरे पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं एक के बाद दूसरा कदम बढ़ा पा रही हूँ और मुझे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है. तो मतलब एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आया और वो हार्ट से आया. मतलब थैंक यू होने का फीलिंग आया. और वो Okay. मैंने जस्ट इतने टाइम पे किया कि मैं अपने बच्चे को छोड़ने जा रही थी कहीं पर. बस वो 1.5 मिनट ही किया, पर 1.5 मिनट में आई फील ब्लेस्ड कि Yeah. यार हमारे पास इतनी बड़ी चीज है और हमने कभी इसका शुक्राना नहीं किया. हाँ. सो आपने वो जो 1.5 मिनट किया, आपको लगता है आपके 100 स्टेप्स हो गए थे? यस मैम, आने जाने पे 2 टाइम पे किया ना मैंने, मतलब 5 मिनट ब्रेक आया होगा, हो गए. ओके, फाइन. तो पहली बार जब आप करते हो ना, तो इंश्योर दैट यू डू 100 टाइम्स इन वन गो. हाँ मतलब आपने बोला ना आने जाने में बीच में ब्रेक भी आया, आपने किससे बात किया या कुछ हाँ भी, हाँ हाँ. है ना? तो पहली बार जब भी कोशिश करो करने की, तो पहली बार एटलीस्ट डू इट फॉर 100 मैम हो गया होगा steps. 100, 1 टाइम में हो गया होगा. मैंने तो आने जाने दोनों टाइम पे कर लिया था फिर. हाँ. सो पहली बार 100 तो करना ही करना है, बिकॉज उससे क्या है कि हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि उसको जो फीलिंग हमारी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज होने में 100 स्टेप्स लगेंगे, वो 90 सेकेंड्स लगेंगे ही लगेंगे. या उसके बाद आप जितना मर्जी करते जाओ, पूरा दिन करते जाओ. एंड क्या क्या महसूस हुआ जब आपने वो किया? सो व्हाट वाज द फीलिंग एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मतलब ऐसे अंदर से आवाज आ रही थी, यार ये तो कभी किया ही नहीं, और इतना मतलब अच्छा, मतलब अंदर से आवाज जैसे सुने मुझे कि यार ये तो मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं कि मैं एक के बाद दूसरा स्टेप अपने आप उठा पा रही हूँ और अपनी मंजिल पे पहुंच पा रही हूँ. तो मतलब ओके. सो आई इस हैव अ टाइप से. क्वेश्चन, फॉर यू. कि जो आप बोल रहे हो कि आपको ये महसूस हुआ, was it the experience when you were doing the exercise, or was it later, or was it before? नहीं, जब मैं कर रही थी, मतलब मैं 10-12 स्टेप के बाद ही मुझे ये Yeah. फीलिंग आ गया था. ज्यादा भी नहीं, मेरे को बहुत जल्दी मतलब फील हो गई थी ये चीज.
कि यार इसके लिए हमने कभी अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड नहीं किया, जबकि ये कितना हर टाइम हम शुक्राना इस चीज से कर सकते हैं। हम डेली चोर्स में भी कितने अपने घर में ही सराउंडिंग्स में इतना घूमते हैं, 100 स्टेप से ज्यादा ही घूमते होंगे डे में, लेकिन हमें 100 स्टेप की जरूरत ही नहीं है। हमें हर वक्त बस भगवान जी का शुक्र करना चाहिए कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने एक्सप्रेशन दे रही हूँ, मेरी आवाज निकल रही है, मेरी मतलब हर टाइम में मतलब फील आता है कि अब मैंने छोटी छोटी चीजें की, मतलब मेरे किचन में भी इतने सारे टूल्स हैं जिनको मतलब मैंने यूज किया और कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, बट आई फील कि मेरे पास बेलन है यार, ये ना होता तो मेरी रोटी भी गोल ना बनती। मतलब ये छोटी छोटी चीजें अब जिंदगी में समझ आनी शुरू हुई है, पर आई हैं तो अप्लाई करेंगे तो आगे भी पहुंचेंगे, मैजिक तो होना ही होना है, इतना तो I'm बिलीव so आ गया, I'm so happy for you, Preeti. I'm so happy. ये चीज I'm आ गया। so happy for you. And congratulations that you started experiencing that. That Yes. there is an opportunity every moment to say thank you. हाँ जी, थैंक Yeah. यू मैम। Yeah. So the only thing I would say is when you are doing practice of that 100 steps and when you are thinking of something else, that means at that moment you're not saying thank you. That is the only correction I wanted to make was that when you are doing gratitude, thank you, thank you, thank you, that actually takes you away from all the thoughts. मैम यस, इट इज अ मतलब मेजर टूल टू लिव इन अ थॉटलेस लाइफ। मतलब हाँ, मैंने क्योंकि एक जगह उस टाइम पे जब आप सिर्फ थैंक यू सोच रहे हो, तो एक तो आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, तो आप कुछ और भी नहीं सोच रहे हो, क्योंकि सारा सारा फोकस सिर्फ थैंक यू पे है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने ये चीज कब सोची, पहले सोची, बाद में सोची, या करते टाइम सोची? नहीं, करते वक्त 10 हाँ, स्टेप्स के so बाद। that's okay because the first time you are doing it and great the way you have done it. Going forward when you will start practice, तो आपको लगेगा कि जब आप ग्रेटिट्यूड करते हुए चल रहे हो ना, उस टाइम कोई और थॉट नहीं आता कि हम ये पहले कर सकते थे, या मैं क्यों नहीं कर पाई पहले, या गिल्ट, या कुछ नहीं आता उस टाइम सिर्फ थैंक यू आता है। थैंक यू, एक इमोशन जनरेट होता है, गुड हाँ, इमोशन। that's what I'm saying. और उस कई टाइम बार सिर्फ तो एक ऐसे फीलिंग। तरंगे बॉडी में फील होती हैं कि मतलब या ये क्या है, ये क्या हो गया, एक थैंक यू वर्ड बोलने से मैजिक क्रिएट हो गया। मैम मैंने कहीं पढ़ा था कि हम एक दिन में मतलब 60,000 थॉट्स हमारी यस, बॉडी करती है, और वो हमारे ब्रेन में 60,000 थॉट्स आते हैं ड्यूरिंग अ डे। ड्यूरिंग अ डे, और उसमें हम अपनी एनर्जी इतनी बर्न करते हैं बेकार की बातों में स्ट्रेस ले लेके। अगर वही शुक्राना में कन्वर्ट कर दें या और टूल्स में कर दें, तो हम कहाँ अपने आप को एनहांस कर लेंगे। हम क्या, हर कोई डेफिनेटली। कर सकता है, हर कोई कर सकता है, हर के अंदर ये बस एक इच्छा की कमी है। और आपकी ये क्लासेस ही हमारे अंदर वो इच्छा भी डालने की कि हाँ हम इस चीज से भी अपने आप को कमावर कर सकते हैं अगर हम इस चीज को करें तो। ये भी एक एडवांटेज है हमारे लिए। Yeah, definitely. Thank you so much for sharing that, Preeti. थैंक यू मैम। And anybody else wants to share कि आपने कल जब फुटस्टेप्स किए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे जैसे अभी प्रीति ने बोला कि अलग सी तरंगें उठती हैं शरीर में, you feel a different sensation in your body. So anybody experienced मैम anything? क्वेश्चन, मैम एकता हियर, एक Yeah, क्वेश्चन है कि ये जब हम ये जो थैंक यू बोलते हैं, तो ये मतलब कोई चीज को पर्टिकुलरली लेके बोलते हैं कि बस जनरली बस खाली थैंक यू बोलना है? So initially you just say thank you when you put your foot down. You put another foot down, you say thank you. You thank you, thank you. So see, initially you just have to do that. Going forward, when you get into the habit of saying thank you and you understand कि आपको gratitude आ रहा है, आपको अंदर से महसूस होना शुरू है, then you can go deeper. Then you can say thank you for your foot. You can say thank you for the ground. Or if you're walking in a nature, you can say thank you for the trees around you. But that is later on. Right now, just focus on only your foot. वो पूरा हम supposed to be for any one thing even when we do it later, जब किसी एक चीज पे No. That, see, once going forward, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आप किस किस चीज के लिए थैंक यू बोलते चले जाओगे, because you will get so much into habit of saying gratitude. But initially, this is step one. That's just taking steps and saying thank you. अभी सिर्फ यही करना है। ठीक है मैम, एक शेयरिंग भी है। हाँ जी, बोलो। कल मैंने एक हफ्ते पहले मेरे डैड से भी इस बुक के बारे में शेयर किया था। You shared about it. Yes, so I told him about the whole thing and कैसे है ये, तो my पापा was like कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, तेरी लाइफ में कोई चेंजेस हुए हैं? सो हुए थे छोटे मोटे, जो मैंने उनके साथ शेयर किया, जो उनको वो भी अमेज्ड ही हो रहे थे वो उस चीज से।
एंड अभी फादर्स डे में आई वेंट पापा को विश करने के लिए, एंड सडनली दैट वेरी डे ही फाउंड दिस बुक का हिंदी वर्जन इन हिज ड्रॉर. आई डोंट नो हाउ. And you don't know for how many years it was lying there. Yes, and my father thought that it was a Father's Day. Maybe I have bought it for him. So वो उनके and मैम you won't believe उनके side table के drawer में पड़ी थी वो किताब, पता नहीं कब से. And mom से फिर उन्होंने पूछा तो mom was like कि ये तो अपने घर में पता नहीं कब से पड़ी हुई है, इतने दिनों से उनका नोटिस नहीं गया. और मैंने उनको बताया और उनके ड्रॉर में पड़ी थी, तब उन्होंने निकाला. एंड ही वाज लाइक कि ये तो मतलब वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ. So क्योंकि it's जनरली time for हमारे magic. ड्रॉर में भी are very particular कि क्या चीजें रहेंगी. It's time for magic to come into his life. And Yes. magic is giving him cue that start reading it and practicing Yeah, it. yeah. I had shared the Hindi version of the PDF file with him, so he has read the first chapter. Then he was like कि एक ही चीज लिखी हुई है ये. मैंने कहा पापा आप ज्यादा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा. तो उनको obviously वो confidence उसमें नहीं आ रहा था. And yesterday what happened, I did share this also with him so that उनको समझ आए कि नहीं हो रहा है कुछ. Yesterday I went to Croma to buy headphones for my kids. तो मैं इनफैक्ट एक महीने से बोल रही थी मेरे हस्बैंड को भी. तो ही वाज लाइक कि अमेज़न से ऑर्डर कर लो, अभी इस टाइम पे क्यों बाहर जाना. तो मैंने कहा कि नहीं वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है. आई डोंट नो व्हाई आई इंसिस्टेड सो मच एंड व्हाई आई लाइक सो मच गोइंग टू क्रोमा टू बाय एनीथिंग, जबकि मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग वहां से कुछ करी नहीं है. एक हेडफोन्स लिया हुआ है और एक फायर स्टिक ली हुई है, दैट इज इट. So I went yesterday and suddenly when मेरा headphones पुराना वाला जो मैंने वहां से लिया था वो खराब हो गया था, तो they agreed to replace it totally. Wow. So that they said that is their policy. So I was kind of prepared क्योंकि मैंने उनसे पहले बात कर ली थी उस चीज के लिए कि मेरा ये replace हो जाएगा. So I have 2 sons, so I thought I'll buy 2. एक देके so एक मेरा पैसे नहीं लगेंगे, एक लग जाएंगे. And वहां गए तो वो suddenly when पूरा बिल हो गया, ही टोल्ड मी कि भाई आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे. सडनली ही वाज लाइक कि आपका इसमें प्रीमियम कस्टमर डिस्काउंट दिखा रहे. एंड आई जस्ट हैड 1600 का मेरा पहले का था हेडफोन्स, माइनस दैट आई जस्ट हैड टू पे $200 फॉर दैट. मतलब 2000 के मैंने ईच खरीदे हैं जो मुझे डिस्काउंट करके 900 ईच में मिल गए. सडनली प्राइमरी कस्टमर डिस्काउंट, जबकि वहां पे कोई डिस्काउंट चल भी नहीं रहा था. आई वाज सो अमेज्ड कि क्या चीज का डिस्काउंट मुझे दे रहे हैं और ये सडनली कैसे हो गया. सो दैट वाज रियली गुड. आई वाज सो हैप्पी. मैंने एक्चुअली पूरे रास्ते थैंक यू भी बोला है ऑटोमेटिकली टू क्रोमा एंड आई हैव कॉल्ड एवरीबडी पॉसिबल. मतलब जिन को आई रियली वांटेड टू शेयर अबाउट इट, सबको कॉल करके आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि ये क्या हो गया. This is magic. So did you share this with your dad? Yes, I did. Great. Thank you so much, Khushbu, for sharing that. Thank you, ma'am. The more you'll practice, the more you will be surprised because magic. Ma'am, Ekta. Sorry, Ekta. So जितना आप share करोगे उतना ही magic होता चला जाएगा आपकी life में. Yeah, because magic तो चमत्कार है ना, वो हमें लॉजिक की दुनिया में समझ नहीं आएगा. अब आपको नहीं मालूम आप पे प्रीमियम डिस्काउंट था ही नहीं, आपको ये भी नहीं मालूम कि आप उनके प्रीमियम कस्टमर हो. हाँ. Yeah, but and something was pulling you into that shop. Yes. Amazon पे ऑर्डर करते हैं तो Amazon से भी आ ही जाता वो घर पे, आ ही जाता, जाना ही नहीं पड़ता. But something was calling you there. Can you see that? आपको कोई चीज जैसे उस तरफ खींच रही थी कि तुम्हें यहाँ आना है, यहाँ से खरीदना है. Yes, ma'am. Because जितने का तो Amazon से लोगे उसमें शायद आपके 2 आ गए. हाँ. Yeah. And उससे भी कम में मैम. हाँ. So this is magic and this is how even money comes to you. This is money which has come to you, right? Yes, yes. तो पैसा आपने बचाया, जो जितने का सामान आप लेके आए उतना पैसा तो आपको मिला ही है ना एक तरह से. हाँ. So it's a money which is flowing into your life in different ways and forms. Yes, true. Thank you so much for sharing that. आपने ये मनी के चैप्टर में शायद ये बात डिस्कस करी थी, तो जब ये हुआ तो मैं एक्चुअली यही सोच रही थी उस टाइम पे. पहला थॉट ही यही आया उस टाइम.
It's like money coming to you. Yeah, Yes. great. Okay, let's start with today's chapter. So who's going to read today's chapter? आज तो दिल का मामला है भाई, कौन पढ़ने वाला है? I want to nominate my name, but I read yesterday. Okay, anybody else wants to nominate their name? Thank you so much, Varun. बताओ यार, 10 लोग हैं, कोई तो करो nominate. Every day I have to ask the same thing. Otherwise, I'm going to fix 2 people who will read it every alternate day. Okay, ma'am, I'm also there, Archana. Yeah, I know. That's what I said. I will not fix 2 people. एक दिन अर्चना पढ़ेगी, एक दिन वरुण पढ़ेगा, बस यही कर देती मैं फिर. And you know, people who are not reading, तुम्हें पता नहीं तुम क्या मिस कर रहे हो. जो लोग पढ़ते हैं उनसे पूछो कि when they are reading, what is their experience? I really want, Varun, you read it yesterday. I want you to share with all these people, जब तुम खुद पढ़ते हो, and when somebody else is reading, what is the difference? Difference सबसे बड़ा ये है focus का. Like when I read ना, I'm more focused. तो मुझे कोई distraction नहीं होता आसपास, मैं सिर्फ उसी पे ध्यान दे रहा होता हूँ. I really get कि वो session में चल क्या रहा है. So I feel more connected. Yeah. So you really get it कि उसमें क्या लिखा है. Yes. हाँ. And I get each and every word as I speak ना. Yeah. तो एक एक word जो है वो आप जैसे अंदर उतर जाता है. Yes. Yeah. So that is the difference. If you really want that kind of experience, then read it. यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं कर रहा कि आप अच्छा से पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो, आपकी आवाज अच्छी नहीं है. ये सब क्या है? ये सब आपके अपने बारे में सेल्फ डाउट्स है, या आपके अपने बारे में कुछ बिलीव्स बना रखे हैं आपने, और ये क्या कर रहे हैं, आपको रोक रहे हैं जिंदगी में. And even I do mistake when I read. कभी-कभी मेरे से भी गलती हो जाती है या. We all do, यार. That's it. That's okay. So what I'm saying is कि ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं जिंदगी में. आप जहां कुछ बोलना चाहते हो, ब्रिलियंट आइडिया हो, तो भी नहीं बोलोगे. कहीं पर भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, नहीं करोगे, बिकॉज आप बोलना नहीं चाहते हो कि मैं पता नहीं कैसे साउंड करूंगा या मैं गलत बोल जाऊंगा. अपना कितना नुकसान कर रहे हो अपनी जिंदगी में. All because of looking good. Yeah, that's it. And ma'am, some lines comes as if, you know, those lines are made for us only. जैसे लगता है मेरे लिए ही बने. That's true. तो इसीलिए I mean, जो भी हेजिटेशन है, जो भी आपका हर्डल है, जो भी आपका मेंटल ब्लॉक है या आपका बिलीफ है विच इज कमिंग, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप उसको तोड़ सकते हो. और कहीं वो प्लेटफॉर्म इतने इजीली मिलता नहीं है. और हम तो बहुत सारे लोग भी नहीं है कि आपको लगे इतने सारे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे. और आई कैन गारंटी यू, आपको कोई भी यहाँ पे आपको जज नहीं करने वाला है, बिकॉज वी ऑल आर सेम. आपको क्या लगता है मुझे बहुत कुछ आता है जो मैं सुबह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही होती हूँ या बोल रही होती हूँ? मैं मिस्टेक्स नहीं करती हूँ. तो क्या मैं चुप करके बैठ जाऊं? अगर मैं चुप करके बैठ जाऊं तो सेशन होगा क्या? I say whatever I have to say. Because मुझे लगता है कि मेरे बोलने से शायद किसी को कुछ मिल जाएगा. शायद मुझे ही वो चीज दोबारा से एहसास हो जाएगी कि मैंने ये बोला, तो मैं खुद कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. Similarly, when you start reading, आपको एक एक अक्षर समझ आता है और आप अपनी जिंदगी में उसको देख सकते हो कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, कितना कर रहे हो. It's an opportunity. Don't miss out. अदरवाइज अर्चना और वरुण दो तो है ही हैं. कभी कभी हमारे तरुण जी भी आ जाते हैं, जैसे आज आए हुए हैं. हाँ जी, पढ़े. Ma'am, shall I? या प्लीज. Day 20, Heart Magic. अच्छा, और ये आपने जो पेड़ पे देख रहे हो, लोगों ने दिल बना रखा है. आप लोगों में से किसी ने बनाया था बचपन में या कॉलेज टाइम पे? Yes. हम अपना नाम लिखते थे और अब डिफरेंट पिक्चर्स बनाते थे. हाँ, तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, ऐसे दिल बना के अपनी गर्लफ्रेंड का या अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिख लेते हैं, है ना? क्योंकि दिल जो है वही एक्सपीरियंस करता है. दिल जो है वही याद रखता है चीजें. आज भी याद आ गया ना तुम्हें कि तुमने वो बनाया था, तो ये किसको याद रहा? दिल को, क्योंकि दिल से लिखा था. या सो लेट्स रीड. Gratitude is the memory of the heart.
Jean Baptiste Massieu, 1743-1818, French Revolution activist. ओके, तो अभी जैसे वरुण ने शेयर किया कि वो ऐसे पिक्चर्स बना के अपने नाम लिखा करता था, तो ऐसे ही जो चीजें हमें याद रहती हैं वो हमारे दिल में रहती हैं, दिल में रहती हैं, और दिल को ही सुकून या दिल को ही दुख देती हैं, नहीं देती हैं। अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया था, तो वो अगर दुख होता है तो कहाँ होता है? दिल में होता है ना, मेरा Yes, दिल ma'am. दुखा दिया इसने, या और अगर Yes, कोई ma'am. बहुत अच्छी चीज हुई होती है, जब आप उसको याद करते हो और आप खुश हो जाते हो कि यार कितना अच्छा दिन थे, कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया था, तो वो कौन याद कर रहा है और वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है उस टाइम पे? जो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है वो कौन है? वो दिल है। बिकॉज फीलिंग्स जो है वो दिल से आती हैं, थॉट्स दिमाग में आते हैं, फीलिंग्स दिल में आती हैं। और Yes. जब दिल और दिमाग मिलके सोच का काम करते हैं, तब थॉट एंड फीलिंग्स जो है वो जनरेट होती हैं। या इसी तरह से जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं किसी चीज का, तो किस चीज के लिए करते हैं? जब हमने अभी पास्ट की चीजों का ग्रेटिट्यूड किया, तो हमने मेमोरी से ही सोचा ना, हमने Yes. मेमोरी से सोचा, उसके बाद हमने उसको दिल से थैंक यू दिया। Hmm. तो मेमोरी, ग्रेटिट्यूड इज अ मेमोरी ऑफ हार्ट, वो दिल से निकलती है, उसकी Hmm. यादें दिल में रहती हैं। या सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। क्योंकि आज का चैप्टर जो है वो हम सब जो भी पढ़ने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो हम दिल से करने वाले हैं। बिकॉज दिल और फीलिंग्स जो है हमारे दिल की, वो बहुत पावरफुल होती हैं। अब लेट्स रीड। You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. हाँ, तो हम जब भी बोलते हैं कि फीलिंग इज द फ्यूल, आप कितनी फीलिंग के साथ थैंक यू बोल रहे हो, आप कितने फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। आप जितना ज्यादा गहराई से थैंक यू बोलोगे, जितना ज्यादा महसूस करते हुए थैंक यू बोलोगे, उतना ही वो आपकी जिंदगी में मैजिक को लेके आएगा। तो आप सोच कहाँ से रहे हो? अंदर से, इट इज फ्रॉम योर हार्ट। तो फीलिंग जो है वो हार्ट से आ रही है, और चीजें कहाँ बदल रही हैं? बाहर, राइट? जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, आपको अचानक कोई चीज दिख जाती है, आपको अचानक कोई दोस्त मिल जाता है, right? So these kinds of things are happening outside, but feelings only generate dil se. So when you start practicing this, things around you start changing outside of you. Anji. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take you take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. 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 Yeah. Okay, pause. So what this book is talking about is कि अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हैं और आपके आसपास की चीजें बदल रही हैं, बट आज की जो प्रैक्टिस है, इसको करने से जो आपके आसपास की चीजें जितना टाइम ले रही हैं,
शो अप करने के लिए, आपकी जिंदगी में दिखने के लिए, आपकी जिंदगी में आने के लिए, ये उस टाइम को कम कर देती है, मतलब कोलैप्स कर देती है, या उसको इतना रहने से उसको कोलैप्स करके यहाँ ले आती है, मतलब इतनी उसको पास ले आती है। और वो कैसे है, जब आप फोकस हार्ट पे फोकस करके ग्रेटिट्यूड देते हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका हार्ट की रिदम नॉर्मल हो जाती है। अब आपने देखा होगा जब आप सीढ़ियां चढ़ के आते हो तो आपका हार्ट बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है, धड़क रहा होता है ना, या आप भाग रहे हो या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो तो आपका हार्ट बहुत जोर से पंप कर रहा होता है। और जब आप बहुत गुस्से में होते हो तब भी आपका हार्ट बहुत तेज चल रहा होता है, चल रहा होता है कि नहीं? कभी गुस्से में महसूस किया है कि दिल Yes, ma'am. इतनी जोर से धड़क रहा है, सांस इतनी तेज चलनी शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? Hmm. So, but when you start focusing on your heart and paying gratitude, सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके बॉडी, आपके हार्ट की रिदम जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अब आप जब ईसीजी कराते हो तो उसमें क्या चेक करते हैं? आपके हार्ट का रिदम ही तो चेक करते हैं कि ऐसे ऐसे चल रहा है कि ऐसे करके जो उसकी एक रिदम में चल रहा है। तो जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो और हार्ट के ऊपर फोकस करके देते हो, तो फर्स्ट थिंग इट डज इट, आपके हार्ट के रिदम को वो नॉर्मल कर देता है। अब वो जो हार्ट के रिदम को नॉर्मल करता है तो क्या होता है? आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका बीपी ठीक रहता है, आपका हार्ट ठीक रहता है, ये तो है ही है। द अदर थिंग इज कि हार्ट पे फोकस करने से आपकी फीलिंग का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, आप ज्यादा गहराई से महसूस करते हो। जब आप गहराई से महसूस करते हो, डीपली महसूस करते हो, उतना ही वो पावरफुल हो जाता है, उतना ही उसमें मैजिक और बढ़ जाता है, उसमें उसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जितनी इंटेंसिटी से आप ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी ही जल्दी चीजें आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू इट। हाँ जी, पढ़े। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. ओके, तो पहला स्टेप उसने बताया हार्ट मैजिक करने के लिए कि आपने हार्ट के ऊपर फोकस करके आपने ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स बोलने हैं, थैंक यू, जिस जिस भी चीज के लिए आप बोल रहे हो। अब हार्ट पे फोकस आप कहाँ कर सकते हो? आप बाहर से भी कर सकते हो कि मेरा हार्ट यहाँ पे है, और पीपल हु नो कि हमारा हार्ट अंदर कैसे पंप कर रहा है, किस तरह से वो धक 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 कर रहा है, आपको वहां फोकस करना है, आप वहां फोकस कर सकते हो। अब कहीं चीज पे भी फोकस करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम फोकस कर रहे हो तो आसपास की चीजें जब आप देख रहे होते ना, बिकॉज हमारी आंखें जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो अगर आप अपनी आंखें बंद कर लोगे तो बाकी चीजों से आप अपना फोकस हटा के अपने हार्ट पे फोकस करना सीख जाओगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप आंखें बंद करके फोकस करेंगे तो आप आसानी से फोकस कर पाएंगे और ग्रेटिट्यूड को फील कर पाएंगे। क्योंकि अदरवाइज आप आंखें खोल के अगर इधर कुछ कर रहे होते हो तो आपका ध्यान आता है, ये क्या है, वो क्या है, ये कलर ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ये फोन क्यों इस तरह से रखा है। आपको ना बहुत सारी आंखें आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट करती हैं। तो अगर आप अपनी आंखें बंद करके फोकस करेंगे तो यू विल बी एबल टू फोकस इजीली। सो स्टेप नंबर 1 इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्ट। आप बाहर से करें या अंदर से करें और आंखें बंद कर करें। नेक्स्ट। There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. या तो दूसरा क्या करना है, आपने अपना ये राइट हैंड लेना है और अब दिल के ऊपर रखना है
आपने देखा होगा ना, बहुत जगह पर लोग दिल पे हाथ रख के बात करते हैं। बहुत जगह पे लोग जब दे टेक ओथ, बहुत सारी कंट्रीज में ये प्रैक्टिस है कि जब वो जैसे होता है ना, स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, तो जो लोग होते हैं वो जैसे हमारे यहाँ ऐसे गीता पे हाथ रखते हैं या ऐसे हाथ रख के ऐसे हाथ करके बोलते हैं, जो भी है। कुछ कंट्रीज में ये प्रैक्टिस है दैट दे कीप देयर हैंड ऑन द हार्ट व्हाइल स्वेरिंग इन, कि वो दिल से इस चीज के लिए अपना कमिटमेंट दे रहे हैं, दिल से महसूस करते हुए फीलिंग्स के साथ उस चीज का कमिटमेंट दे रहे हैं। तो सिमिलरली जब आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हो हार्ट मैजिक, तो फर्स्ट यू हैव टू डू इज फोकस ऑन द हार्ट। अंदर से करो, बाहर से करो, आंखें अगर बंद करके करोगे तो इजी हो जाएगा। सेकेंड चीज क्या करनी है, आपने अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रख के फिर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को महसूस करना है। लेट्स सी और क्या बता रहे हैं। हाँ जी। As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on the keep your mind on your heart area and say the magic words thank you slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desire, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top 10 top desire. ओके, अभी ये करना किसके लिए? आपके जो 10 सपने हैं, जो आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स लिखे हैं, आपने उनके लिए हार्ट मैजिक करना है। और वो करना कैसे है? आपने पहला अपना ड्रीम या डिजायर है उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने हार्ट पे फोकस किया, आंखें बंद करी, अगर आप चाहते हो आंखें बंद करना, आंखें बंद करी, हार्ट पे फोकस किया, इनसाइड आउटसाइड जैसे भी करना चाहते हो, अपना हाथ को आपने अपने हार्ट के ऊपर रखा। एंड at this time if you actually close your eyes it really helps, because मैं जब initially करती थी तो मैं हार्ट आंखें बंद करके ही करती थी। So when you put your hand on the heart and you close your eyes, you're focusing on your heart right now, and then you're thinking about that one desire you just read, and उसको महसूस करते हुए कि आपने वो जो डिजायर लिखी है आप उसको महसूस कर रहे हो, तो आपका जो डेप्थ ऑफ फीलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल जो है, ग्रेटिट्यूड का जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप उसके साथ जब उस चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो, तो आपको नहीं पता आपने कितना मैजिक डाल दिया अपने उस एक पर्टिकुलर ड्रीम और डिजायर में। तो इसी तरह से आपने 10 के 10 अपने जो आपने लिखे उनके ऊपर एक एक करके सबको पढ़ना है और ये हार्ट मैजिक करना है। सो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू। हाँ जी। You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. ओके, तो वो कह रहा है कि अगर आप कोई कोई चीज अपने जो डिजायर्स हैं उसमें कोई कुछ कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं जो आप चाहते हो कि जल्दी से हो जाए, तो अगर ये हार्ड प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते हो उस पर्टिकुलर ड्रीम के लिए, तो आप बहुत जल्दी उसे पा सकते हैं। या दैट इज वन। सेकेंडली, जब आप दिन में कभी भी थैंक यू बोले, तो आप जब भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो आप दिल से दे सकते हो। एक तो आप अपने ड्रीम एंड डिजायर के लिए कर रहे हो, आपको जो चाहिए, मान लो आपके 2 डिजायर्स हैं जो आप बहुत चाहते हो जल्दी से हो जाए, तो आप रोज उसके बारे में ये हार्ट मैजिक कर रहे हो कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बाद अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके आप महसूस करते हो, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो उसको आप कितना पावरफुली ग्रेटफुल हो रहे हो, फीलिंग कितनी गहराई से जा रही है, उतनी जल्दी ही वो आपकी जिंदगी में आएगा। तो अगर आप रेगुलरली करें तो ऑब्वियसली वो जल्दी लेके आएगा आपको आपकी जिंदगी में उसको। और दूसरा क्या होगा, जब हार्ट मैजिक करते हो आप किसी भी चीज के लिए, मान लो आपने मैंने जैसे मान लिया पानी पिया,
मैं पानी पीते पीते ही उसको हार्ट से उसको बोल रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर दिस वाटर विच इज हाइड्रेटिंग माय बॉडी, यू नो। एंड मैं किसी भी चीज के लिए कर सकती हूँ। अगर मैं अभी ये लैपटॉप के लिए बोलूँ या इंटरनेट के बोलूँ, मैं किसी भी चीज के लिए जब हार्ट से फील करते हुए मैजिकल वर्ड्स बोलती हूँ थैंक यू, तो आप अपनी खुशी को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज एवरी टाइम यू डू दैट यू गो टू अ डिफरेंट लेवल। आप जितनी बार भी ऐसे थैंक यू बोलोगे, आपको लगेगा आप कितने लाइटर फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स कितनी शिफ्ट हो रही हैं, आप कितना यू स्टार्ट फीलिंग जॉयफुल, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। तो हैप्पीनेस के साथ जब ग्रेटिट्यूड दोगे तो मैग्नेट तो आप बन ही गए हो, यू नो, यू बिकम मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हर चीज हर तरह से आपका फायदा ही कर रहा है। हार्ट मैजिक कर रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए तो उसको जल्दी लेके आएगा। अदरवाइज दिन में वैसे ही कभी करते करते याद आ गया इसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ तो लेट मी डू इट फ्रॉम हार्ट, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हार्ट मैजिक की। दूसरा देखो ना उसका कितने फायदे हैं। एक तो आपको अपने हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस हो जाएगी कि करना कैसे है। दूसरा वो आपको मतलब इतनी खुशी देगा उस टाइम पे। और जब खुशी और ग्रेटिट्यूड दोनों मिलके आप कुछ कर रहे हो, सोचो कितना मैग्नेटिक हो जाएगा। फिर जो भी आप जिंदगी में चाहते हो वो सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा और जल्दी से दिखना शुरू हो जाएगा। It could be smallest thing, it could be a big thing. You don't know what it is going to start manifesting in your life. So it's a very easy thing to do and सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही जिंदगी में आप you will be surprised because magic अचानक कहाँ से कैसे होता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. ओके अब मैं जब हार्ट मैजिक की बात कर रही हूँ तो आपको जब कोई पुरानी बात याद आती है ना जो आपको बहुत दुख देती है, दुख दे के गई थी, तो जब आप उसके बारे में सोचते हो ना तो आपके दिल में हल्का सा एक टीस उठती है नहीं उठती है? Yes, ma'am. सब जने कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचते ही हो। Yes. डोंट टेल मी कि नहीं सोचते हो। तो वो टीस that always runs in background. वो हमेशा कहीं ना कहीं रहता ही है। तो वो आपको जब उसके बारे में सिर्फ फोकस करके उसके बारे में सोचोगे तो वो आपको टीस देती है। दिल में एक हल्का सा बड़ा अजीब सा ऐसा लगता है हार्ट रेंचिंग करी, जिस तरह कैसे दिल को कोई मरोड़ रहा हो। ये दिल में हल्का सा कुछ तकलीफ सी महसूस होती है। तो इसी तरह से जब आप ये हार्ट मैजिक करोगे आपको अपने दिल में पीस, हैप्पीनेस ये सब महसूस होना शुरू होगा। आई यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट? देन प्लीज स्टार्ट डूइंग हार्ट मैजिक। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको कुछ भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको जब ऐसा कुछ नेगेटिव सोचते हो तो आपका जैसे ना ये आपको दिल करता है रो पड़ो, आपका चेहरे के भाव बदल जाते हैं, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है उस टाइम पे। सिमिलरली जब आप ये वाला हार्ट मैजिक करोगे तो क्या होगा? You will start feeling a different kind of tingling sensation in your body. या ऐसा लगेगा जैसे एकदम से शांति मिल गई हो। Peace is descending on you. You're feeling happy. You're feeling tranquil. Yeah, and अगर ऐसा एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाए तो लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी ना। और ऐसे एक्सपीरियंस में जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे तो सोचो उसकी पावर कितनी होगी। तो और फिर दूसरी बात what goes around comes around। अगर ऐसी फीलिंग्स आप भेज रहे हो यूनिवर्स में तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपको ऐसी ही सिचुएशंस लाइफ में मिलती जाएंगे जिसके लिए आप और हार्ट मैजिक करते जाओ और आपकी जिंदगी इतनी पीसफुल हो जाए। तो अगर ऐसी जिंदगी चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो, बिकॉज आई डोंट नो
हम लोगों में से कितने लोगों ने वो पीस का एहसास किया है? बहुत टाइम से नहीं किया है, बिकॉज लाइफ इतनी भाग दौड़ वाली हो रखी है, इतना कुछ चल रहा है जिंदगी में कि वो पीस क्या होता है? हम कहते हैं 1 मिनट की शांति दे दो यार, बोलते हो ना घर में। Yes, yeah. ऑफिस का तो सिरदर्दी है, इधर से ची, इधर से पैर, उधर से पति कुछ बोल रहा है, उधर से सास कुछ बोल रही है, उधर से बच्चे चिल्ला रहे हैं। अब बोलते हैं, यार 2 मिनट तो शांति दे दो मुझे, बोलते हो ना। अगर वो शांति चाहिए तो हार्ट मैजिक करो, हमेशा ही शांत रहोगे, हमेशा ही ब्लिसफुल रहोगे, हमेशा ही कनेक्टेड रहोगे अपने सपनों के साथ और अपने आप के साथ. So this is the chapter. Let's read the practice. Magic practice number 20. Heart magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Number 3, close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Number 4, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on. One second. Focusing your mind on the area around your heart and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay. So first वाला of course you know क्या करना है. अब ये दूसरे वाले में वो कह रहा है कि आज का जो practice है उसमें you have to focus your attention on around the area of your heart. अभी आप अंदर की तरफ देख सकते हो, बाहर की तरफ देख सकते हो, जैसे भी whatever works for you. Then he said close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, internally say the magic words thank you. अब ये क्यों बोल रहा है? वो कह रहा है पहले दिल से दोस्ती करो. दिल से कितने लोगों की दोस्ती है? अभी नहीं है ना हमारी अपने दिल से दोस्ती. हम सिर्फ दिल को बोलते हैं यार तू क्यों ऐसे किसी के ऊपर भी आ जाता है, फिर मैं तड़पता रहता हूँ, फिर मैं दुखी होता रहता हूँ. ये दिल है ना बहुत तंग करता है. ये दिल है कि मानता नहीं है. कहते हैं ना दिल कराया है करने का इसलिए खा लिया, बाद में पेट दर्द हुआ. दिल कराया था उसको मिलने का, दिल कराया था उसको फोन करने का और उसने फोन नहीं उठाया, इतना तकलीफ हो रही है मुझे. ये दिल है ना जो मानता ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कराता रहता है मुझसे. बट क्या आपने दिल से दोस्ती करी है? कभी उसको थैंक यू बोला है? आज सबसे पहले आपने अपने दिल के अराउंड एरिया को फोकस करते हुए आंखें बंद करके सबसे पहले अपने दिल को थैंक यू बोलो. से थैंक यू टू योर हार्ट जिसने इतने बरसों आपका साथ दिया है. आपके हर हार्ट ब्रेक को उसने बेचारे ने सहा है. आपकी हर खुशी में वो शामिल हुआ है, पर आपने कभी भी उसको अपना साथ माना ही नहीं अपने साथ. या सिर्फ जब कुछ किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है तो हार्ट याद आता है, अदरवाइज नहीं आता है. अदरवाइज हम दिल के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं या उससे कनेक्ट नहीं होते हैं. सो दिस इज वन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बिकम फ्रेंड्स विद योर हार्ट. तो कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले उसके साथ दोस्ती कर लो. तो पहले अपने हार्ट से दोस्ती करो, आंखें बंद करके हार्ट के अराउंड फोकस करके, और चाहो तो अपना हाथ भी दिल पे रखते हुए दिल के साथ दोस्ती करो और उसको पहले थैंक यू बोलो. थैंक यू माय हार्ट, यू बीन सो गुड टू मी, यू बीन सो स्ट्रॉन्ग. इतना कुछ सह गया तू मेरे साथ साथ और तूने कभी मेरे को कंप्लेन नहीं करी. या एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू. My whole body is working because of you. I'm so grateful to you. The blood in my body is being pumped by you. जो कुछ भी कहना चाहते हो, बट एक बार हार्ट से ना दोस्ती कर लेना. सिर्फ इतना भी कह दोगे ना, यार तू मेरा दोस्त है, तूने मेरा हमेशा साथ दिया है और मेरी हर दुख मेरे हर सुख में तू ही मेरे साथ रहा है. अगर आप पहले उससे दोस्ती कर लो, उसके बाद क्या करना है,
टेक योर टॉप 10 डिजायर, जो आपने 10 अपने डिजायर्स लिखी है, उसके बाद आपने एक डिजायर को पढ़ना है, फिर वही प्रैक्टिस जो हार्ट प्रैक्टिस है, आंखें बंद करके हार्ट के एरिया के अराउंड सोच देखते हुए, फोकस करते हुए, हाथ दिल पे रखना चाहो तो रख लो इफ दैट हेल्प्स, एंड आंखें बंद करके आपने उस एक डिजायर को, बिकॉज आपने लिखा है ना एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, तो उसको ऐसे महसूस करते हुए थैंक यू दिल से बोलना है। आपको ऐसा लगेगा दिल के अंदर से आवाज आ रही है थैंक यू, दिल के अंदर से आवाज आ रही थैंक यू, आपने ऐसे महसूस करते हुए बोलना है। तो आपने जब उसके लिए थैंक यू 3 बार बोलना है, उसके बाद आपने अपने नेक्स्ट डिजायर को पढ़ना है, फिर उसके लिए थैंक यू बोलना है। इस तरह से आप अपने सारे डिजायर्स को आज आपने थैंक यू बोलना है। और गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर डिजायर विच यू रियली वांट कि जल्दी से फुलफिल हो जाए, आपको बहुत ज्यादा चाहिए वो, तो आप उसके लिए ये मैजिक जो है वो आप रेगुलरली कर सकते हो। 1 सेकंड यार, मेरा वो निकल गया है, गिव मी अ सेकंड। Anyways, let me just finish the chapter. It's about to finish. Okay, so this is how you're supposed to do it. And raat ko, of course, you have to do your magic rock practice. So any questions you have about today's session or any this chapter, in case you have any unclarity and you want to understand isko kaise karna hai, aap पूछ सकते हैं. Anybody has any question? No. Clear है ना सबको बिल्कुल? Yes. सिर्फ Yes, ये दिल का मामला है, दिल से कनेक्शन बना लो। हम कहते हैं ना, हाँ इसका तो मेरा दिल का कनेक्शन है, बोलते हैं ना, किसी को किसी फ्रेंड को बोलते हैं यार इसका मेरा तो दिल का रिश्ता है, कहते हैं ना हम। तो आज पहले दिल से रिश्ता बना लो। सो बिकम फ्रेंड्स विद योर हार्ट फर्स्ट, और जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको एक एक करके पढ़ के दिल पे हाथ रखते हुए, दिल के ऊपर फोकस करते हुए, आंखें बंद करके। सी आंखें बंद करने से ना फोकस करना इजी हो जाता है, और फिर वो आवाज जैसे ना अंदर से आती है, तो आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके वो ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। और जितना ज्यादा डीपली फील करते हुए ग्रेटिट्यूड दोगे, उतना ही मैजिक होगा लाइफ में, राइट? ओके, सो एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट टुडेस चैप्टर? कि आपको चैप्टर में सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे ये समझ में आई है या कि श्रुति? दिल, वो कहते हैं दिल का मामला है, कह रहे हो ना, दिल साफ होना चाहिए। तो सिर्फ दिल साफ होना इनफ नहीं है, दिल को ग्रेटिट्यूड और प्यार से भरना भी जरूरी है। यस, दैट्स राइट। और हम अपने बेचारे दिल को तो पूछते ही नहीं है, दूसरों को बोलते तू मेरे दिल में रहता है, दूसरों को बोलते तू मेरे दिल में रहता है, या तू मेरे दिल में रहती है। अरे आप पहले बताओ, आप अपने दिल के साथ कितना कनेक्टेड हो? किसी को बिठा तो रहे हो, पहले उसके साथ कनेक्टेड हो रहे हो, पर दिल से कितने कनेक्टेड हो? That's a nice one. Yeah, that's right. Thank you, Shruti. Anybody else wants to say what is the ma'am, and it always reminds ma'am, I don't know, ये book reading करने के बाद ही realize किया कि जिंदगी में सबसे पहले हार्ट ही आता है। बिल्कुल। पर हम लोग कभी भी उसके बारे में सोचते ही नहीं, और उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। मतलब we read in this chapter only that that heart comes into existence, the first part in our body. Yes, we read it in the health chapter. Yeah. Yes, and we like when we conceive also, we go go to doctor. हम लोग कितना क्या feeling आता है कि wow, we are able to hear the heartbeat of the baby. Yeah. पर कभी भी उस चीज को gratitude नहीं किया, सोचा ही नहीं इस तरीके से, पर अब realize किया मैम। Yeah. So get connected to your own heart. Yes, ma'am. क्योंकि सबसे अच्छा आपका दोस्त वही है, या? और सब कुछ वहीं से शुरू होता है, वहीं से होता है, वहीं खत्म होता है और वहीं खत्म होता है। हाँ, yes, ma'am. सबसे अच्छा दोस्त वही है आपका, जो हमेशा साथ निभाता है। Yes, ma'am. So true. खत्म भी वही होता है. So true. Yeah. Thank you so much, Archana. Anybody else wants to say anything before we conclude the session? Yeah, I would like to invite everyone to join me at 3:30 the World Online Yoga Peace Festival.
So, Jagjit, if I have your permission, I will put the link on the group. Yeah, you can put it for today, of So- course. Otherwise, मैंने सबको मना किया हुआ उस पर डालने के लिए. Okay. So it's at 3:30. आप खुद ही डाल देना. I'll give it to you. Okay, you send it to me. Let not others do it. Huh? Yeah. Since it's your place. Yeah, yeah. You send it to me. I'm hoping I can do it live because network issues are there. But मैं recording भी बनाने वाली हूँ अभी morning. So wish me luck so that All it the comes very through best, well. and you are doing great. You're Thank you. really, really doing great. Thank you Bringing so much. yoga to everybody and taking it internationally, which is already there, and actually giving the authentic version of yoga to people. I'm just part of it, and my talk is not on yoga, it's on anger and pain management. Okay, today is about anger and pain management. Yes, yes, and I'm trying to give it a very fresh feel to it. So be Okay. there. So all of you will enjoy it, I'm sure. Okay, thank you so So- much, Shruti. Thank you. Okay, okay, let's do the gratitude prayer. So close your hands. I mean, fold your hands, close your eyes, and say thank you to your heart today. In case you want to say thank you to your heart to begin your day with that, or you want to say thank you to anybody or whoever. Yeah. Okay, so thank you everybody. Have a terrific Thursday. मेरे को ना कुछ अच्छे words नहीं बताते हो तुम लोग. मैं हर बार वही repeat करती रहती हूँ. You should come out with some new adjectives and superlative words kind of a things for Thursday. T से कुछ बताना होता है. Every week के day के लिए कुछ ढूंढ के लाओ. Do some work for me. Yeah. So have a terrific Thursday, and I will see you tomorrow. और अपने दिल से जुड़ जाओ बस. फिर दूसरों को जोड़ना अपने दिल से. पहले खुद जुड़ जाओ. Yeah. Okay. See you tomorrow. Bye bye. जगजीत जी, one thing. Yeah. What Vandana? आपके ऊपर कलर बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने पहना. That Okay. color looks so nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gratitude to you. Thank you so much. Okay. Bye bye.